हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रुनझुन पैलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नाम की हिस्ट्री बता देती हूँ। पहले इस यूट्यूब चैनल का नाम था टाइम टू स्केच। जब मैं सिर्फ स्केचिंग करती थी, चारकोल, ग्रेफाइट, रियलिस्टिक स्केचिंग। बट देन मैंने अलग अलग मीडियम्स एक्सप्लोर करे, तो मेरे को लगा कि स्केचिंग मेरे वेराइटी ऑफ काम को लिमिट कर रहा है, टाइम टू स्केच। सो देन आई वांटेड टू अपग्रेड माय नेम। सो मल्टीपल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेम के बाद ये आया द रुनझुन पैलेट, मेरा खुद का पैलेट in which I have variety of work which I have done, which I'll be doing in my life. So this was the history of the channel. Introducing myself, I am Runjhan Agarwal. I am based in Sikar, Rajasthan, and I have done my bachelor's of visual arts from Modi University. मतलब इतना हैपनिंग नहीं है कि वाओ विजुअल आर्ट्स लिया है, बहुत ही इजी लाइफ होती है, कॉलेज भी कितना सुंदर है, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है। और सही में रोलर कोस्टर था, अच्छा भी था बुरा भी था एक्सपीरियंस। पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपने आप को, मैं सोचती भी नहीं थी मेरे को ये चीज़ें आनी चाहिए, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू काम करना, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना। पर आई थिंक मैं अब 4 साल पहले से 4x 10x ज़्यादा काम कर पाती हूँ और चीज़ें मैंने सीखी है, मल्टीपल मीडियम सीखे हैं। इट वॉज ओवरऑल अ good experience, I must say. So, first video on YouTube is very special for every YouTuber. Or this is my first video. So I wanted to make it special, more special, because I wanted to document my portfolio, my 4 years of work over here, in which I'll be sharing my portfolio which I've made on the compilation of my all of my work. And this might be an insight video for all of you guys to know, if you are pursuing Bachelor of Visual Arts, what do's and don'ts you should do, and also how you should compile your portfolio, how you should design it. All what I learned, I'll be sharing with you. I hope this would be an insightful video for you guys. So let's get started. So this is my portfolio. मेरे 4 साल की मेहनत इस फाइल में है, इस 20 पेज की फाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब चीज़ बताने का ट्राई करूँगी, मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, कलर्स की मैंने ऐसे क्यों ली, मैंने फॉन्ट ऐसे क्यों लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा काम एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं ऐसे देख के बताऊँगी पर तुम्हें इधर दिख जाएगा। सो फर्स्ट पेज इज द फ्रंट पेज। मैंने जो फॉन्ट लिया है वो काफ़ी फ्लोई टाइप का रखा है, टू शो माई वर्सेटैलिटी इन डिफरेंट मीडियम, दैट आई एम नॉट लिमिटेड टू वन मीडियम, which I think goes well. And then comes your name and your designation, visual artist Runjhun Agarwal. Then comes this resume page in which I have my picture, a good portrait picture of mine, so that the person knows who am I. Then about me and my contact details. First of all, I wanted to keep my portfolio very much minimal. So I've taken 2 colors, dark brown and beige color, which I think in a way does not overshadow my portfolio and also complements my work. And one important thing which I'll be sharing later, that I think gives a personal touch to my portfolio. Then comes the next page in which I've shared my education, experience, certification, skills, and my technical skills which I have gained. Then comes the artist statement, in which you share who you are as an artist. Like, I work in multiple mediums like string art, charcoal, acrylic, traditional art. I'm currently learning oil painting. So I've mentioned all of it. I have done multiple installations in a group project. So I've written all of it. Who am I as an artist? How do I see art? This is a must for an artist to convey to the audience that who you are as an artist. Then comes the table of content. उसमें एक मेजर थिंग जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में मेरा पर्सनल टच डाला है,
जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लोगो है, द पैलेट, आई वांटेड टू कीप इट एज एन एलिमेंट इन द पोर्टफोलियो, ताकि एक पर्सनल टच आए मेरे पोर्टफोलियो में और बिलोंगिंगनेस लगे मेरे काम की. सो in the beginning pages I've used it as a major element in the pages, पर बाकी जो मेरे आर्ट वर्क्स वाले पेजेस है ताकि वो उसको ओवरशैडो ना करे, इसलिए मैंने उसको एज अ वाटरमार्क की तरह यूज किया. मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट का कोर है दैट इज द डिफरेंट मीडियम्स व्हिच आई हैव यूज्ड. सो फर्स्ट कम्स चारकोल स्केचेस, देन कम ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, एक्रिलिक, मिक्स मीडिया, the collaborative installations which I have done in my college, digital illustrations, and then commissions which I have done. Then I have made separators on the basis of all my mediums, obviously to differentiate my work ताकि अलग अलग लगे मेरा काम. Also I have shortlisted some of my charcoal sketches, क्योंकि बहुत सारे charcoal sketches बनाए मैंने, तो सब तो नहीं डाल सकती मैं पोर्टफोलियो में. तो I have picked best 5, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने, एंड देन आई हैव मेड अ कोलाज ऑफ मल्टीपल अदर वर्क्स ताकि वैरायटी ऑफ मेरा जॉनरा ऑफ वर्क देख सके. मेजर इनसाइट फ्रॉम द पोर्टफोलियो मेकिंग वुड बी, आपको 2 पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, एक डिजिटल और एक जो आप प्रिंट करोगे. प्रिंटिंग के लिए यू शुड कीप इन माइंड कि आप मार्जिन अकॉर्डिंगली छोड़ो ताकि वो बाइंडिंग के टाइम पे आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट या फिर कंटेंट ऑफ पेज है वो दब नहीं जाए बाइंडिंग के नीचे. सो आई हैव मेड 2 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द सेम पोर्टफोलियो, जिसमें एक में आई हैव केप्ट ऑल द मार्जिन्स इक्वल फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, पर जहाँ पे बाइंडिंग होगी वहाँ पे प्रिंटिंग वाले पोर्टफोलियो के आई हैव लेफ्ट अ 1 इंच मार्जिन कि वो चीज़ कटे ना. ऑल्सो जो मेरा फॉर्मेट ऑफ पोर्टफोलियो है वो है कॉलम ग्रिड. कॉलम ग्रिड इज, आप मेजर पार्ट ऑफ द पेज पे आप अपना काम शो करते हो, ऑब्वियसली क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, आप अपना काम ज्यादा शो करोगे. देन द डिस्क्रिप्शन, जो आपका काम के पीछे का कॉन्सेप्ट है आप उसको डिस्क्राइब करते हो. और नीचे आई हैव यूज्ड 3 कॉलम्स ऑफ वर्क इन विच फर्स्ट आई हैव पुट माय रेफरेंस कि मैंने वो आइडिया ऑफ वर्क कहाँ से लिया. देन close-ups of my work. The first work in my portfolio is The Illusion of Wall Street, जिसमें I have shown न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट को 2 3D वेरिएशन में. It has 2D plus 3D वेरिएशन. और then comes Timeless Facades. Again इसमें 2 point पर्सपेक्टिव से मैंने 2 3D मॉडल की तरह एक स्केच बनाया है. मेरा मेजर काम चारकोल में रहता है हाइपर रियलिस्टिक काम. देन कम्स खुखार. आई थिंक इसको मेरे को 6 महीने लग गए थे बनाने में, और आई थिंक 6 महीने की मेहनत वर्थ इट लग रही है. इट्स चाइल्डहुड सोप, वन ऑफ माई फेवरेट स्केचेस. मैं जितनी बार भी किसी को ये स्केच दिखाती हूँ सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और आई थिंक मेरा भी पर्सनल फेवरेट है ये स्केच. इसमें एक बच्चा नहाते हुए दिखा रहा है, इन विच आई हैव शोन मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड कि हाउ माय मदर और एनीवन्स मदर वुड बेथ हर चाइल्ड. दिस इज वन ऑफ द स्केच फ्रॉम माय पर्सनल मेमोरी. Then is In Gentle Hand. This is a very special sketch because I sold this in my second year, and I think I did a quite good job that time. Then comes the collage of more of my work to show variety. में भी मैंने ज़्यादा overwhelming नहीं रखा है, 5 से 7 major sketches. Then comes the separators again, my traditional paintings. This is the best part of my portfolio because all the color theory complements it naturally very nicely. Another insight, you should keep your major part of your painting on the page. Then comes your title of the painting, then comes your size and medium, and then comes your description. So this is one of my painting, Meera painting Srinath ji, a dialogue of
डिवोशन। और ये मैंने मिनिएचर प्लस पिक्चर पेंटिंग कंबाइन करके बनाई है। इसमें मैंने जो कैनवस था वो ट्रेडिशनल पिचवाई स्टाइल में प्रिपेयर किया था और जो पेंटिंग स्टाइल है वो मिनिएचर है। देन कम्स रथ यात्रा, द फेस्टिवल ऑफ डिवोशन। तो मैंने जगन्नाथ जी की पेंटिंग बनाई है। मेरी फर्स्ट ट्रेडिशनल पेंटिंग थी ये और इसको मेरे को अराउंड 4 महीने लग गए थे। और आई थिंक 4 महीने भी कम है। मेरे को पहले लगा था कि मैं 1 महीने में तो बना लूंगी इसको, पर फिर जैसे जैसे शुरू किया पर समझ में आया कि इतना टफ नहीं है, सॉरी इतना इजी नहीं है। पर बहुत कुछ सीखने को मिला इस पेंटिंग से। मेरे को पेशेंस सीखने को मिला, मेरे को कलर थियरी सीखने को मिली। मेरे को ब्रश ही नहीं पकड़ना आता था, मैंने इस पेंटिंग से ब्रश पकड़ना सीखा है। पहले मैं सिर्फ स्केचिंग करती थी। देन अनदर पट्टचित्रा पेंटिंग अंडर द कदम ट्री, जिसमें मैंने व्यास का विजुअल दिखाया है, श्री राधा कृष्ण का। और इसको मुझे पिछले वाले से कंपैरेटिवली कम टाइम में लगा था, पर मेहनत लगी थी। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। देन वनवास की नैया, जिसमें माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी केवट पे बैठ के वनवास के लिए निकल रहे हैं। देन माय एक्रिलिक पेंटिंग्स। आपको मेरा मेजर पेंटिंग का काम राधा कृष्ण के डिवोशन में ही मिलेगा, बिकॉज आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू देम। नेक्स्ट इज द फ्लूट विथ इन वृंदावन, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ राधा कृष्ण मैंने बनाया है। नेक्स्ट इज एकोज ऑफ सेरेनिटी। दिस वॉज वन ऑफ माई असाइनमेंट्स, जिसने मेरे को बोला था किसी भी आर्टिस्ट का एक स्केच लो, उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करो। तो ये स्केच था जो मैंने लियोनार्डो दा विंची का लिया था और फिर उसको पेंटिंग में कन्वर्ट किया था। आई हैव एक्सप्लोर्ड टेक्सचर आर्ट इन एक्रिलिक। उसमें दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्क, जिसमें एक रैबिट है, उसमें उसके टेक्सचर ऑफ हिज हेयर, आसपास के फ्लावर्स वो दिखाए हैं मैंने। देन इज माई मिक्स मीडिया वर्क। मिक्स मीडिया का ये वाला काम मेरा फेवरेट काम है, जो मैंने पहली बार स्कल्पचर बनाया था। इज कृष्णा द हार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसमें मैंने मल्टीपल मीडियम्स लिए, मल्टीपल इंस्पिरेशंस ली। मैंने आंखें जो है वो राधा रमन जी हैं वृंदावन में, उनसे ली। हाथ जो है वो गोविंद देव जी जयपुर से लिए। जो बॉडी पोस्चर है वो बांके बिहारी जी का लिया है। जो पत्रावली करी है हाथ पे, आंखों पे, पैर पे, वो मैंने ली है राधा गोविंद धाम वृंदावन से। मैंने पूरा इसका गोल्ड प्लीट से पूरा ऑर्नामेंटेशन एड ऑन किया है। बैकग्राउंड यूनिवर्स दिखाया है, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट यूनिवर्स। देन कम्स अनदर एक्सप्लोरेशन ऑफ माइन इन मिक्स मीडिया इज स्ट्रिंग आर्ट, जिसमें मैंने अपनी बहन का स्केच बनाया था विथ थ्रेड एंड नेल्स, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। देन कम्स माई इंस्टॉलेशन, जो कि मैंने कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट्स में किए थे, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस इतना सोलो काम अभी तो नहीं कर सकती मैं। जिसमें फर्स्ट में हमने अर्धनारीश्वर दिखाया था इन अ 10 फीट हाइट ऑफ वर्क, सनबोर्ड यूज करके। देन हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सरस्वती माता बनाई थी। एंड देन वी हैव शोन दशावतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड 4 वेदास। फिर आते हैं मेरे डिजिटल इलस्ट्रेशंस, जो कि मैंने आईपैड पे बनाए हैं मेरे। फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मैंने मेरी स्कूल का बनाया है, जिससे मैं 10th पास आउट हूँ। और ये मैंने प्रिंट करके अपने डायरेक्टर सर को भी दिया था, राइटिंग अ नोट दैट द प्लेस दैट शेप्ड मी, क्योंकि इस स्कूल ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मेरी पर्सनालिटी पूरी इस स्कूल की वजह से डेवलप हुई है। फिर आता है, मैंने एक जगह इंटर्नशिप करी थी, वहाँ पे प्री स्कूल लॉन्च हुआ था उनका। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्पस के लिए आई हैव मेड दिस इलस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल। फिर मैंने थोड़ा कोलाज लगाए हैं
ऑफ माई डिजिटल इलस्ट्रेशन। फिर आता है कमीशंस, जो मैंने कमीशंस करे हैं थोड़े बहुत, जो मैंने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से लिए हैं। आई थिंक मैं हर एक आर्टिस्ट को सजेस्ट करूँगी ये वाली चीज़ कि आजकल के टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट और डोमिनेंट है, यू शुड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। मैं ये बोल रही हूँ 4 साल की डिग्री पूरी होने के बाद मेरे को इस चीज़ का बहुत रिग्रेट रहने वाला है कि मैंने अपनी 4 साल की जर्नी क्यों नहीं डॉक्यूमेंट करी यूट्यूब पे। मेरे को इससे बहुत एक्सपोजर मिलता डेफिनेटली आज के टाइम में, और मेरा जो कॉन्फिडेंस अब बढ़ने वाला है वो 4 साल पहले बढ़ चुका होता, और 4 साल में बहुत कुछ ग्रो कर चुकी होती मैं। आई वुड सजेस्ट यू टेक दैट फोन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और पोस्ट करो कुछ भी। दिस इज अ स्केच जो मैंने कमीशन बेसिस पे लिया था कॉलेज में। भगवान होते महावीर भगवान जैन के, उनकी डीटी और उनके जो गुरु थे उनकी डीटी बनाई है। दिस वॉज ऑल चारकोल स्केच। देन अ क्यूट पोर्ट्रेट ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर, और फिर अनदर पोर्ट्रेट ऑफ अ कपल। फिर मैंने कोलाजेस ऑफ वर्क लगाया है जो मैंने कमीशन बेसिस पे काम किया है। फिर मैंने स्ट्रिंग आर्ट जो मैंने पोस्ट बनाया था वो मैंने सोशल मीडिया पे डाला, और उसको देख के आई गॉट 2 कमीशंस फ्रॉम 2 डिफरेंट पीपल, विच उन्होंने अ बिट लार्जर साइज बनवाया था, फ्रॉम विच आई हैव मेड, और आई थिंक इट हैज टर्न्ड आउट वेरी वेल, वेरी ब्यूटिफुली. This is the end of my portfolio. Thank you page. And then again a personal element at the end, the follow up for my social media. Anyone who sees my portfolio must go to my social media and hit that follow button. So that is it. ये था मेरा portfolio. I think आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी related to portfolio, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Also I think I expressed myself कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ in future. So if you want to follow along with my journey, hit that subscribe button and see you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय. नहीं, रुको 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 रुको, कमेंट करके जाओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, कुछ सजेशन में क्या बना सकती हूँ इन फ्यूचर, और लाइक करके जाना. बाय.